Hi, dear students. We are going to learn today motion in a straight line, a new lecture. Perhaps this is lecture number 2 for 10 plus 1 students. This can also be useful for ninth students, those who are seeking for foundation. Now, in this lecture, I'm going to discuss with you, uh, you know, like some types of motion of a body, types of motion of a body. So, this is what we are going to understand, the various types of motion of a body. The first type of motion we are going to learn, rectilinear motion. Rectilinear motion. Rectilinear motion is that motion in which a particle or a point mass of a body is moving along a straight line. Means that in rectilinear motion, the particle or the point object, when we say particle, it means point object. When we say object, even it means point object, is moving in a straight line. Means, you know, we can take anything, a person, a box, we can take anything, a person, a box, a ball, any shape, that is a point object. Its dimension will not play any role, just point object, a dot. Interesting. So, rectilinear motion is a straight line motion of a system. Means in the rectilinear motion, we will be studying just a point mass moving in a straight line, a point mass moving in a straight line. That is a rectilinear motion. Simple. Now I'm going to discuss second motion, that is translatory मोशन. ये बहुत ध्यान से सभी लोगों ने समझना है, जल्दबाजी नहीं करनी. ट्रांसलेटरी मोशन of a body is that motion which is not of a point mass. Means that when we talk about the rectilinear motion, we don't discuss about the sizes, we don't discuss about the dimensions, but when we discuss translatory motion, then we discuss the
total movement of the constituent particles, which are also moving simultaneously parallel to the straight line. Let me explain you this. मुझे थोड़ा इसको explain करने दीजिए. जैसे मेरे पास इस शेप का कोई चीज है, राइट? इसमें 1 2 3 4 पार्टिकल्स हैं, करेक्ट? अब ये जो ब्लॉक है, this block is moving along this straight line. अब ये ब्लॉक चल के यहां आ गया कहीं, ठीक है? चलो मैं एग्जैक्टली तो नहीं बना पाता, इमेजिन करो ये सेम है. तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये सारे के सारे पार्टिकल्स साइमल्टेनियसली ट्रेवल कर रहे हैं, राइट? पैरेलल ट्रेवल कर रहे हैं. दे आर ट्रेवलिंग पैरेलल, they are traveling parallel, you know, to the straight line motion. All 1 2 3 4 are moving parallel to the straight line motion. Such a motion is called translatory motion. इस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? इस मोशन को हम बोलेंगे ट्रांसलेटरी मोशन. ये सारी की सारी जो मोशन है, दिस इज अ ट्रांसलेटरी मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन में हम पार्टिकल की बात करते थे. पूरी की पूरी जो हमारे पास व्हाट यू कॉल दैट ऑब्जेक्ट है, वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है रेक्टिलिनियर मोशंस में, ठीक है? बट ट्रांसलेटरी मोशन में ऑल द पार्टिकल्स ट्रेवल पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन. अब मैं इसको फिर से डिफाइन करता हूं. ट्रांसलेटरी मोशन, बोर्ड पे देखिएगा आप. ट्रांसलेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच a body which is not a point mass body is moving such that all its constituent particles move simultaneously along the parallel straight lines, and all its constituent particles shift equal distance in a given interval of time. That is a translatory motion. और मैं आपको एक इसकी एग्जांपल देता हूं. अगर हम एक इंक्लाइन बनाते हैं, ऐसे, और इस इंक्लाइन पे एक हम बॉक्स रख देते हैं, तो इसके पार्टिकल 1 2 3, ये है A
दिस इज ओ, दिस इज बी। तो ये सारे के सारे पार्टिकल्स साइमल्टेनियसली equal distances in equal intervals of time, equal distances in equal intervals of time, ये जब ट्रेवल करते हैं पोजीशन यहाँ से पोजीशन P से पोजीशन से O, that we will call it as a what kind of motion? This will be known as a translatory motion. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? Translatory motion. क्या बोलेंगे इसको? Translatory motion. It is not a point object, but the whole body is moving. The all constituent particles of the body moves equal distances in equal intervals of time. That is a translatory motion. If it is one particle, that is a rectilinear motion. How's it? Interesting. तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो कि इतना सिंपल है, पर बच्चों को कभी कभी ये तंग कर देता है। होप आपको नहीं करेगा। अब हम थोड़ा आगे निकलते हैं। अब मैं आपको सर्कुलर और रोटेटरी मोशन के बारे में एक्सप्लेन करता हूं। सर्कुलर और रोटेटरी मोशन, ये बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स। होता क्या है कि ट्रेडिशनल टीचिंग में हम अज्यूम करते हैं आपको आता है, क्योंकि वहां पर एक ही पॉइंट होता है कि हमने फटाफट एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट में बच्चों को लेके जाना है सो दैट बच्चे अट्रैक्ट रहे। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां तो आप अपनी मर्जी से इसको पढ़ रहे हैं, है ना? तो इसलिए इसमें लाइक माइंडेड ही स्टूडेंट्स आएंगे और लाइक माइंडेड ही होते हैं। सो सर्कुलर मोशन क्या होती है? अब आपके दिमाग में जब सर्कुलर मोशन की बात आएगी तो आपके दिमाग में एक पॉइंट आएगा और आपको लगेगा कि ये पॉइंट फिक्स है और कोई चीज सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है और इसका रेडियस आर है। तो सर्कुलर मोशन इज दैट मोशन in which a particle, circular motion is that motion in which a particle or a point mass body is moving on a circle about a fixed point which is called the center of circle. तो circular motion और rotatory motion is that motion in which a particle is moving in a circular path about a fixed point that is called the center, and obviously this is radius. So the locus
of a point mass, point object which is moving with angular velocity, every moment it is moving in circular path. Such a motion is called circular motion. अब आपके ब्रेन में एक चीज चल रही होगी कि ये रोटेटरी मोशन क्या है. बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप. जब मैंने आपको रेक्टिलिनियर मोशन की बात की थी तो मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया था, और जब मैंने एक ऑब्जेक्ट की बात की थी जिसमें कंस्टिट्यूटेंट पार्टिकल्स थे तो आपने ट्रांसलेटरी मोशन लिया. नाउ आ जाओ. अब सर्कुलर मोशन पॉइंट के लिए, और जो बड़ी ऑब्जेक्ट है जिसमें कॉन्स्टिट्यूटेंट पार्टिकल्स है, जैसे ये स्टाइलस है, इसके सारे पार्टिकल्स कंस्टिट्यूटेंट पार्टिकल्स इकट्ठे मूव कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन. हाँ, मैं भी आपको समझाता हूं. पहले इसको रब करते हैं. रोटेटरी motion. You know, rotatory motion is that motion in which a body which is not a point mass, is moving in such a way that all its constituent particles are simultaneously moving. मैं यहां एक रॉड लेता हूं, इसको मैंने यहां फिक्स किया है. 1 2 3 4 इसके कंस्टिट्यूटेंट पार्टिकल्स हैं. तो स्टूडेंट्स, ये रॉड मूव करेगी तो इसके कंस्टिट्यूटेंट पार्टिकल्स भी साइमल्टेनियसली मूव करेंगे. रॉड ने मूव किया तो इसके कंस्टिट्यूटेंट पार्टिकल्स भी साइमल्टेनियसली मूव करेंगे. कहने का मतलब यह है कि इस रोटेटरी मोशन में body is not point mass, it's all constituent particles 1 2 3 4 move simultaneously along a concentric circles whose centers lie on a line called axis of a rotation and shift through equal angle in a given time. तो ये साइमल्टेनियसली 1 2 3 4 मूव कर रहे हैं और ये इक्वल एंगल्स ट्रेस कर रहे हैं इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में. तो ये है रोटेटरी मोशन. तो अब आपका नॉलेज कंटेंट क्या बना? रेक्टिलिनियर मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन मोशन. सर्कुलर ट्रांसलेटरी मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन मोशन. डिफरेंस क्या है? रेक्टिलिनियर में एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव करता है, ट्रांसलेटरी मोशन में बहुत सारे पार्टिकल्स कंस्टिट्यूटेंट पार्टिकल्स साइमल्टेनियसली ट्रेवल करते हैं along a parallel to the straight line. सर्कुलर मोशन में एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है. सर्कुलर मोशन में एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करता है, लेकिन रोटेटरी मोशन में
कंस्टिट्यूटेंट पार्टिकल्स, सभी कंस्टिट्यूटेंट पार्टिकल्स साइमल्टेनियसली मूव करते हैं, वो इक्वल डिस्टेंसेस, इक्वल एंगल्स, इक्वल टाइम इंटरवल में मूव करते हैं. दैट इज ए रोटेटरी मोशन. हाउ इज इट? बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते होंगे कि इस तरह से भी फिजिक्स पढ़ते हैं. हाँ, इसी तरह से फिजिक्स पढ़ते हैं. करेक्ट. अब आती है बात, फास्ट, आई कैन स्पीक फास्ट आल्सो, वेरी फास्ट आल्सो, लेकिन आराम से पढ़ते हैं यार, क्या जल्दी है. अब आपको थर्ड मोशन के बारे में बताने जा रहा हूं. दैट इज oscillatory motion. और vibratory motion. Oscillatory motion is that motion in which a body moves to and fro. To and fro. Oscillatory motion is that motion in which a body moves to and fro or back and forth repeatedly about a fixed point that is called mean position in definite interval of time. So, in such a motion, we people call this is an oscillatory motion or a vibratory motion. Just a simple pendulum hai. It keeps on moving to and fro, yeah, back and forth motion about a fixed point. That is called an oscillatory motion or vibratory motion. अब आपको एक चीज बताऊंगा, अब लेटेस्ट स्टेज पे जो इस तरह की मोशन होती है उसमें लिमिट्स होती हैं. जैसे एक सिंपल पेंडुलम ले लीजिए, वो टू एंड फ्रो मूव करता है, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, और इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन. तो ये जो टू एंड फ्रो मोशन है, दैट इज बेसिकली एन ऑसिलेटरी मोशन और ए वाइब्रेटरी मोशन, या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन, वो ऋतिक रोशन वाला डांस, दैट इज बैक एंड फोर्थ मोशन, राइट. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन. तो इसमें दो एक्सट्रीम पोजीशंस का रोल रहता है. ऑसिलेटरी मोशन में ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड. ये लेटर स्टेज पे आपको बताएंगे. इसको एक्सट्रीम पोजीशंस बोलते हैं, और ये बोलते हैं मीन पोजीशंस. इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एस. तो ये लेटर स्टेज पे भी आपको एक्सप्लेन करेंगे. तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में हमने सीखा रेक्टिलिनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन. होप इट इज ऑल क्लियर. हमारी ऐप है एक vsoym.com. इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, vsoym.com. और छोटे बच्चे ऑन योर मार्क्स, ऑन
your marks OYM, I mean on your marks full लिखोगे, on your marks .in। इसमें आप टेस्ट प्रैक्टिस ले सकते हैं। यू कैन कंडक्ट टेस्ट अनलिमिटेड। ठीक है, ये फर्स्ट स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक कंपेटेबल है। दूसरा, हम लोग ऑनलाइन टीच करते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में हमारा फीस रहता है 25 रुपीज़ पर लेक्चर, जो कि हम गूगल मीट पे टीच करेंगे। जो बच्चे एनरोल होना चाहते हैं ऑनलाइन 8th 9th 10th 11th 12th, तो 9814212196 पे आप डायल कर सकते हो। ठीक है, एक बार मैं नंबर फिर से लिख देता हूँ, 9814212196। You can WhatsApp, right? So, thank you, dear students. I have tried to give you in a simplest manner the physics learning। जो बच्चे गांव के हैं, बहुत रिमोट एरिया से हैं, वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप घर में बैठ के YouTube से रेगुलरली फिज़िक्स को, मैथ्स को पढ़ सकते हो। बहुत जल्दी हम केमिस्ट्री भी लॉन्च करेंगे। पहले हम फिज़िक्स लॉन्च कर रहे हैं फुल स्विंग से। तो आपका रिस्पांस हमें इनकरेज करता है, तो आप ज़रूर बताएं ये मेथडोलॉजी कैसी है, जिसमें हम भगाते नहीं है स्टूडेंट्स, ये नहीं करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो।